Success is just a thought until you act upon it. Hello students, welcome in our new topic cleavage, means that segmentation. In the previous video we discussed about the fertilization. In the fertilization we know about the male gamete and the female gamete fertilized to form the zygote. In this video we discuss about the cleavage where the zygote have the segmentation. Cleavage is the process where unicellular zygote convert into multicellular embryo. This process occurs into the fallopian tube. In the cleavage, mitotic division occurs. See in the diagram. This is the uterus and this is the ये यूट्रस है, it's the ovary and it is the fallopian tube. Where is the fimbriae? It catch the unfertilized ovum from ovary, and when the sperm come into contact of this ovum, it may be fertilized and form a zygote. Whole this process is occur in the fallopian tube. After the mitotic division, the zygote is divided into the two cells. Mitotic division does not change their ploidy. zygote कैसा है? 2n, दो सेल भी बन रही हैं तो वो कैसी बन रही हैं? 2n cells की. In the cleavage, mitotic division in the short phase. नॉर्मल माइटोटिक फेज में क्या होता है? G1 फेज होती है, G2 फेज होती है, S फेज होती है. लेकिन जब यहाँ जाइगोट माइटोटिक डिवीजन में आता है इन द ह्यूमन, देयर विल बी ओनली द S फेज. ओके, दो सेल्स आर फॉर्म इन द क्लीवेज नोन एज द ब्लास्टोमियर. अब वो जो सेल जाइगोट से बन रही हैं वो कहलाती हैं ब्लास्टोमियर. दिस प्रोसेस of the division occurs in the after 30 hour of the fertilization. Fertilization के 30 घंटे बाद, after the 30 hour fertilization, cleavage is started and blastomere formed. It is divided again, maybe into 4 cell, maybe into 8 cell. The cells are formed in the cleavage known as the blastomere 30 hours after the fertilization, and the size of the blastomere decreases by their cells, but the number of cells also increases. जो blastomere है उसका size decrease होगा लेकिन numbers of the cell increase होंगे. 1, 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 64. There is no change in the size and shape and volume of embryo. एम्ब्रायो के वॉल्यूम, शेप, साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही तो इसके मास ऑफ साइटोप्लाज्म में. नो एनी चेंज इन द मास ऑफ साइटोप्लाज्म. मास ऑफ द ब्लास्टोमियर इज इक्वल टू द जाइगोट. जो जाइगोट है, जो मास उसका उस समय था वही मास ब्लास्टोमियर के बनने तक भी है. After the 3 days or after fertilization, जब 3 days बीत जाएंगे fertilization के, a rapid increasing of the cells form. काफ़ी मात्रा में 64 के बाद से मल्टीप्लाई होते रहेंगे, डबलिंग होती रहेगी और सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे और एक सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. उसको कहा जाता है मोरूला. एक सॉलिड स्ट्रक्चर, रैपिड इंक्रीजिंग मतलब तेज़ी से इंक्रीजिंग होगा सेल का, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, then it known as the morula.
आफ्टर द 4 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, 3rd डेज तक क्या होता है, मोरूला बन रहा है. आफ्टर द 4 days ऑफ फर्टिलाइजेशन मोरूला एंटर इनटू द यूट्रस. ये जो मोरूला बना ये कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा. एंड व्हेन इट कम इनटू द यूट्रस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, सब सेल्स किनारे होंगी, एक बीच में स्पेस जैसा बन जाएगा. बिटवीन द ब्लास्टोमियर appears and fuse into the central cavity is known as the blastocyst. अब जो ब्लास्टोमियर हम कह रहे थे सेल्स की प्रेजेंस में, वहाँ पर एक कैविटी बन जा रही है जिसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट. समझ आ रहा है. 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन रैपिड इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स फॉर्म ए सॉलिड बॉल ऑफ 12 to 16 cells known as the morula. After the 4 days of fertilization, morula enter into the uterus. Fluid-filled space between the blastomere appear and fuse into a central cavity called the blastocele. At this stage, blastocele बनने के बाद से ये स्टेज एम्ब्रायो की क्या कहलाती है, blastocyst. In the human, it known as the blastocyst. Blastocyst also have the 2 layers. Inner cell mass is known as the embryoblast and outer cell mass is known as the trophoblast. ब्लास्टोसिस्ट भी है, उसके पास 2 सेल आउटर और इनर बनेंगी. जो इनर सेल है उसको हम एम्ब्रायोब्लास्ट बोलते हैं और जो बाहर का है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. ये सारी की सारी प्रोसेस 4 डे तक हो रही है. अब आते हैं ड्यूरिंग 6th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. जब 6 डे बीत जाते हैं फर्टिलाइजेशन के, ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम विद इट्स एम्ब्रायनिक पोल. हमने यूट्रस में पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम सेल्स का फॉर्मेशन होता है एस्ट्रोजन की मदद से. तो वो जो एंडोमेट्रियम वॉल बन रही है यूट्रस की, वहाँ पर आकर के ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम एपिथेलियम में अटैच हो जाना, किसकी मदद से, एम्ब्रायनिक पोल की मदद से. 2 पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल. एनिमल पोल यानी इसको एम्ब्रायनिक पोल बोलते हैं. इसके साथ एंडोमेट्रियम में आकर के अटैच हो जाना. बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द ब्लास्टोसिस्ट सुपरफिशियली इम्प्लांटेड. जैसे ही ये एंडोमेट्रियम में आकर के फिक्स हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, देन इम्प्लांटेशन विल बी स्टार्टेड. इम्प्लांटेशन कब होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट आकर के एंडोमेट्रियम में आकर अटैच हो जाता है. एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जोना पेल्यूसिडा जो सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर बारिल लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा, वो जब तक एंडोमेट्रियल एपिथेलियम में ब्लास्टोसिस्ट आकर अटैच नहीं होता है, तब तक ये जोना पेल्यूसिडा इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर कवरिंग बनाए रखती है. वो मदद करती है कि वो सही जगह पर आकर के अटैच हो. यूट्रस में सही जगह उसका इम्प्लांटेशन होना चाहिए. अगर ये सही जगह इम्प्लांटेशन नहीं होता है, मीन्स दैट कि इफ़ इट विल बी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट प्रेगनेंसी नॉट विल बी अकर. प्रेगनेंसी अकर्स नहीं हो पाएगी and it will be the miscarriage. So it is very important to attach the blastocyst into the endometrial epithelium in the proper place. This process is completed in the first week. In the next video we will discuss about the implantation. Thank you for watching this video.